न्यूमेरिकल बेस में करेंगे बिकॉज आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले ही दिया हुआ था कि आप सॉल्व करके लेके आएंगे ताकि आंसर डिस्कस कर सकें, राइट? तो बी क्विक विद योर आंसर्स. फर्स्ट, which of the following is considered matter? Air is considered as matter क्योंकि matter के पास में क्या होता है? Matter is anything that has mass and occupies space. तो बाकी जो आपके पास में है those are abstract things जो कि आपके पास में मास नहीं कैरी करते. Next, the ancient Indian philosopher who proposed the concept of परमाणु was आचार्य कनर. उन्होंने हमें जो है वो सबसे पहले परमाणु का कंसेप्ट दिया था. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, मैं 3 और 7 जो साथ में चल रहे ना, 2 कॉलम्स है ना, तो कॉलम को साथ में बोलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिए. Question number 3. The particular nature of matter means that matter is made up of tiny discrete particles. Tiny discrete particles, छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है. Question number 7. Which of the following has neither a shape, fixed shape, nor a fixed volume? मैंने वही तो कहा, मैंने आपको जो क्वेश्चन में बना के दिया 2 कॉलम्स ऑन अ पेज है, मैं दो कॉलम्स को साथ साथ. So question number 7. Which of the following has neither a fixed shape nor a fixed volume? ऑक्सीजन गैस आपके पास में. वेरी गुड. गैस का अपना फिक्स शेप नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है. When sugar is dissolved in water, question number 4. When sugar is dissolved in water, the sugar particles occupy the spaces between water particles. Occupy the space between water particles. Water particles के बीच में space है, उसको occupy करें. Question number 8. The force that acts between the constituent particles of matter is called interparticle attraction. Interparticle force of attraction. Very good. Question number 5. Which state of matter has a fixed shape and a fixed volume? Solid. Solid. Solid की अपनी fixed shape होती है, fixed volume होता है. Question number 9. In which state of matter are the interparticle space the smallest? सबसे छोटी होती है. सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं these are टाइटली पैक्ड आपके पास. तो इन टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है बहुत छोटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which state of matter takes the shape of container but has a fixed volume? Liquid. वॉल्यूम फिक्स रहेगा आपके पास में, पर शेप रहता है हमारे पास वो मैटर है उसमें, तो जिसमें कंटेनर में कंटेन किया उस. Question number 10. In which state of matter are the interparticular forces weakest? Yes. गैस में सबसे weakest होती है क्योंकि loosely packed होता है. Question number 11. The continuous random motion of particle is due to their thermal energy. क्या? Option B. Kinetic and thermal energy के कारण. Very good. अच्छा, kinetic thermal energy सबसे ज्यादा किसकी होती है? Yes. गैस की सबसे ज्यादा कम. सॉलिड्स क्यों होती है एग्जैक्टली. द रीजन इज दैट इंटरपार्टिकुलर स्पेस मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कंप्रेसिबल? इनमें से कौन सा आपके पास में हाईली कंप्रेसिबल? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेस मतलब जिसको आप दबा सकते हो. तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल आपके पास में. इधर एक ही गैस का ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 12. The process of mixing of two different substances on their own due to the motion of particle is called diffusion. Diffusion आपके पास दो पार्टिकल, जैसे अभी हमने शुगर और वाटर पार्टिकल्स की बात की थी, वो आपस में मिक्स होते हैं, diffusion. Question number 17. Fluids are substances that Fluids are substances that can flow easily. Very good. 13. If you increase the temperature of a substance, the kinetic energy of its particle will increase. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following pairs are both considered fluids? Liquid and gas. Option B. Liquid and gas. 14. Rate of diffusion is fastest in किसमें होता है सबसे ज्यादा rate of diffusion? Gases.
जिनका सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उनका सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन उनका ज्यादा जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इंटर पार्टिकुलर स्पेस पर डिपेंड करती है, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस किसकी ज्यादा होती है? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 15, why does the smell of hot sizzling food reach you several meters away while cold food does not? Question. हाँ 15. Rate of diffusion increases temperature. Rate of diffusion increases with temperature, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट 19, a syringe filled with air is easy to push down compared to one filled with water because air particle has very particle space. वेरी गुड। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन एमसीक्यू में, ये आपके पास में रीजन में भी आ सकते हैं, तो जो आप आंसर बता रहे हो वही इनका रीजन है कि एयर पार्टिकल के बीच में आपके पास में बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, इसलिए आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस टर्न्स इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। वेरी गुड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ice at standard pressure is 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर आइस का आपके पास में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली 1538 डिग्री सेल्सियस। आयरन एक सॉलिड है, तो सॉलिड का सबसे हाईएस्ट होगा, याद नहीं है तो भी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई कैन अ डाइवर इजीली कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल? There are specific क्या? वाटर पार्टिकल्स के बीच में आपके पास में स्पेसेस होती है जिसमें से वो मूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, when a solid starts melting, its temperature during the melting process जी it keeps decreasing continuously. When a solid starts melting, कहता है एक सॉलिड मेल्टिंग स्टार्ट कर रहा है आपके पास में, तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग के दौरान क्या करेगा? डिक्रीज कर, remains constant until it all of it melts. जब तक वो पूरा ना मेल्ट हो जाए तब तक वो कांस्टेंट रहेगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? आप बर्फ को रखो, वो ठंडा इतने से ही रहेगा ना, मतलब पूरा ठंडा नहीं हो जाता, उसको फिर 10 मिनट छोड़ोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पर जितना पानी मेल्ट हुआ है और जितना आइस उसका तो सेम ही रहेगा ना आपके पास। 27, a wooden table is called a solid because it has a fixed shape and volume. Because it has a fixed shape and volume. Question number 24, what happens to the interparticular distance when a liquid evaporates into gas? It increases. It increases significantly आपके पास। Very good. 28, rice and wheat flour can take the shape of different containers. Why are they still classified as solids? Because each individual grain has a fixed shape and fixed. Very good. Because each individual grain has a fixed shape and fixed volume. 25, if the distance between two particles increases slightly, the interparticle force of attraction drops drastically आपके पास में, वो बहुत तेजी से जो है वो डिक्रीज करेगा। 29, sponge can be compressed easily yet it is a solid. Why? Contains वेरी गुड। क्योंकि स्पंज आपके पास में एक फिक्स शेप रखता है हमारे पास में, ओनली उसके अंदर जो टाइनी वॉल्स है उसमें एयर फिल होती है, तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो वो एयर एस्केप आउट हो जाता है, इस कारण से वो कंप्रेस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following will diffuse fastest in water? A drop of ink आपके पास, क्योंकि वो लिक्विड है तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा। 34, oxygen gas can be packed into small cylinders for hospital use. This utilizes which property of gases? कौन सी property? Like compressibility.
High compressibility. Gases are highly compressed. In which substance are the particles arranged in a highly rigid regular three-dimensional pattern? Question number 31. सॉलिड्स में आपके पास में क्रिस्टल फॉर्म में आपके पास हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में अरेंज किए जाएंगे आपके पास. It will be what? Copper metal. ये एक सॉलिड है यहाँ पे. This 35. Question number 35. The state of particle motion in liquids can be best described as sliding and moving around randomly within a bounded point. सर गलत है, साथ में करेक्शन करते जाए. अच्छी बात है, पर मुझे किसी और गलत है साथ में करेक्शन. Sliding and moving around randomly within a bounded वॉल्यूम आपके पास है, मतलब जो कंटेनर है उसके अंदर आपके पास वो मूव करता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 32. When you add potassium permanganate crystal to water, the water turns purple. एक्टिविटी है ये क्या? देखो ये एक एक्टिविटी आपको जब चैप्टर समझाया था, पहली प्रॉपर्टी कराई थी आपके पास में कि मैटर हैज टाइनी पार्टिकल. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल. तो एक्टिविटी करने के हमने ग्लास लिया, 10 ml पानी लिया, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, कॉपर सॉल्यूशन होता है. फिर हमने एक 10 ml पानी लिया और पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक स्पून इसमें डाला. तब भी हमने क्या देखा कि उसका कलर जो है वो पर्पल हो गया. हमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल नहीं दिख रहे और उसका कलर कैसा हो गया है? पर्पल हो गया आपके पास से. जैसे वो होता है ना कि आप एक चुटकी होली का रंग डालो और पार्टिकल नहीं दिख रहा है पर वो कलर चेंज हो गया आपके पास. वो आप जगह भी थोड़ा सा डालो, एक बूंद डालो, कलर चेंज हो जाएगा आपके पास में. क्यों? क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं पर उनकी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है. तो उसका ये हो गया कि पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. समझ में नहीं बात? If you 36 है. If you heat a piece of copper wire, what happens to its constituent particles? क्या होगा constituent particles को? Question number 36. If you heat a piece of copper wire, अगर आप एक copper wire को heat करने लगते हैं, what happens to its constituent particles? क्योंकि constituent particles जो जब भी आप heat करोगे, जब भी आप किसी भी substance को heat कर रहे हो तो particle energy gain कर रहा है. पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहा है तो दे वाइब्रेट विद ग्रेट एनर्जी. मूव करने के लिए तो उनको एक सर्टेन एनर्जी चाहिए, वो ओवरकम कर जाएंगे तब. इसको दे दो, पेंसिल दे दो, पेन दे दो, मार्क हो गया. नेक्स्ट 33. When a gas leaks from a LPG cylinder, we smell it quickly because high rate of diffusion of gas particles. Because high rate of diffusion of gas particles in air. High rate of diffusion of gas particles in air. Very good. Gases का जो rate of diffusion है वो सबसे ज्यादा हाई होता है. एक बार एक वर्कशॉप हो रही थी, जैसे होता है ना स्कूल में सेफ्टी वर्कशॉप होती है, तो ऐसी एक सोसाइटी में सेफ्टी वर्कशॉप हो रही है जिसमें सारे हाउसवाइफ को बुलाया है उनको जानने के लिए कि घर में जब कभी आग लग जाए तो आप कैसे उसको मतलब मिनिमम पॉज करें, कैसे कंट्रोल करें. तो एक लेडी को स्टेज पे बुलाया है, कहा जाता है कि आपके घर में गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करोगे? वो कहते हैं कि माचिस की तीली जला के देखते हैं, अगर आग लगेगी तो मेरा मतलब कि गैस सिलेंडर लीक हो गया. अरे मैडम जी फिर आप थोड़ी तो बच पाएंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 37. The state of matter which with the highest density is generally gas, liquid, solid या plasma. क्वेश्चन नंबर 37 बताइए. सॉलिड. क्वेश्चन को समझो. The state of matter with the highest density. Density सबसे ज्यादा है. What is density? Density क्या होता है? Mass upon volume. Density क्या है? Mass upon volume. कोई भी समझो, अभी फॉर्मूले से समझ लो. Density is mass upon volume. मतलब density is directly proportional to mass and density is inversely proportional to volume.
इसका मतलब हुआ अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। तो आप देखो सॉलिड लिक्विड गैस में किसका मास ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 42, which among the following can be easily distorted by applying a small external force but returns to shape? But returns to shape. Okay, rubber band. Very good. Question number 38. Which of the following statement is true regarding gases? The particle would free in one direction. क्या? The particle Option C, particles move randomly in all directions at high speed. Question number 43. Gases exert pressure on the walls of container because gas particles collide with each other. option B, because gas particles constantly collide with each other and the walls of the container. नहीं सारी कर 39. Transition from liquid state to gaseous state at constant temperature is known as boiling. लिक्विड से गैसेस जा रहा है, सब्लिमेशन होता है आपके पास में जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस चला गया या गैस से डायरेक्ट सॉलिड आ गया, जैसे कपूर होता है, इट्स बॉइलिंग। बताई थी ना बात। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is not a property of solid? High rigidity, क्या? High fluidity, high rigidity, definite boundary, high fluidity, negligible compressibility. तो हाईली रिजिड होते हैं मतलब अपना स्ट्रक्चर लेके रखते हैं तो वो हार्ड होते हैं। डेफिनेट बाउंड्री उनकी फिक्स बाउंड्री होती है। फ्लूइडिटी मतलब होता है फ्लो करना, तो पकड़ नहीं सकता। कहते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेस मतलब ना की तरफ कंप्रेस कर सकते हैं। 40, when ice melts to water, what happens to the interparticular forces? Yeah. Question number 40, when ice melts to water, what happens to the interparticle forces? They are partially overcome and Very good. They partially overcome and become either आपके पास partially वो overcome करते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं जिस कारण से वो easily break हो जाता है दूसरे form। Right? Next, question number 41. What is melting point of urea? Urea 133 degrees Celsius. 45, on a humid day, the rate of evaporation of water क्या होगा? Increase होगा, decrease होगा? ह्यूमिड डे पे, ह्यूमिड मतलब नमी वाले दिन पे इंक्रीज होता है। ह्यूमिड जैसे बारिश के अगले दिन इवेपोरेशन, छत में पानी डालते हैं, क्या पानी अच्छे से जल्दी इवेपोरेट होगा कम होगा? तो स्लो हो जाएगा ना। क्वेश्चन को समझो और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो। तो ऑप्शन बी डिक्रीजेस व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 46, when a solid dissolves in a liquid, जब एक सॉलिड लिक्विड बनता है तो लिक्विड का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? अगर आपने बर्फ को पिघलाया तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? उतना ही रहेगा ना। अगर आप इस पानी की बॉटल को फ्रीजर में लगाएं और फ्रीज कर दें तो क्या पानी और बर्फ के वॉल्यूम में कोई चेंज आता है? आप उसको फ्रीज करने के बाद निकालो, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके मीनिंग को समझो। इट विल रिमेन सेम, ऑलमोस्ट सेम। भाई पानी जितना बर्फ है उतना ही पानी पिघल के हो जाता है। एक ग्लास को तो पिघल के उतना ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है बस। नेक्स्ट 47, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लोएस्ट इन, सबसे कम किस में होती है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे लोएस्ट।
A gas can fill a container completely because एक गैस कंटेनर को completely fill कर सकती है क्यों? Question number 48. 48. Yep, 48. It's in the particle kinetic energy and magnetic energy. Very good. Because option C, because its interparticle has highly kinetic energy and negligible attraction. Question number 51. What happens to the rate of diffusion when density of liquid increases? In the first one. Rate of diffusion when density of a liquid increases. मतलब अगर लिक्विड गाढ़ा हो गया तो एक पानी और एक मान लो सुगर सॉल्यूशन है और एक हाईली शुगर सिरप है, मतलब चाशनी है, तो चाशनी की डेंसिटी ज्यादा है, इवेपोरेशन रेट चाशनी का ज्यादा होगा या सुगर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा? सिंपल सॉल्यूशन में ज्यादा होगा शुगर, तो क्या होगा? अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? स्लो हो जाएगा, इट विल बिकम स्लो. The space between constituent particles is maximum in 52. नाइट्रोजन मैक्सिमम गैस में होती है, तो इनमें से गैस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 49. प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स इज कॉल्ड रिजिडिटी. कि भाई आपने बाहर से एक फोर्स लग रहा है तब भी आप सेम शेप में रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल ट्राउजर प्रेशर लगा रहे हैं, इंटरनल प्रेशर लगा रहे हैं, वो शेप चेंज नहीं कर रहा. At room temperature, the forces of attraction between particles of solid substances are dashed than those existing in gases. 53. Question number 53. Much stronger, बहुत ज्यादा strong होते हैं. कितने MCQ हैं? कोई अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. If you open a bottle of perfume in one corner of room, the scent spreads. The correct order of processes involved is Followed by expansion. option A, evaporation of perfume liquid followed by diffusion of vapor in air. पहले जो आपके पास परफ्यूम है वो इवेपोरेट होता है, वो जैसे इवेपोरेट होगा फिर वो आपके एयर के पार्टिकल्स के बीच में उसके पार्टिकल्स परफ्यूम के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते. क्वेश्चन नंबर 54. Which out of the following will show fastest diffusion in air? इनमें से कौन सा Carbon dioxide. फास्टेस्ट? नहीं, अमोनिया गैस. अमोनिया गैस सबसे ज्यादा. अमोनिया गैस ही सब्लिमेट है बेटा, मतलब वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा. बाकी तो क्या है, पहले लिक्विड उससे और चेंज होएंगे ना, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा? अमोनिया गैस. नेक्स्ट. The arrangement of particles is less ordered in question number 55. लिक्विड एंड गैस में आपके पास लेस ऑर्डर्ड होते हैं. 56. When water changes into ice, it undergoes Water change. Ice. हाँ. When water changes into ice, पानी जो है वो आइस में जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड बनना. वेपराइजेशन मतलब वेपर फॉर्मेशन होना आपके पास में, लिक्विड वेपर बन रहा है. मेल्टिंग सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना. एंड डिफ्यूजन पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में मिक्स होना. Question number 60. Matter is continuous according to some early thoughts. Which observation directly disapproves this? Dissolution of salt in water without increasing volume. कहते हैं मैटर इज कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू सम अर्ली थॉट्स. कहते हैं मैटर कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो सकता. सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता, पर हम कह रहे हैं कि सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है, तभी तो मिक्स होगा जब उसके पार्टिकल्स ब्रेक हो जा रहे हैं. तो ऑप्शन बी. 57. Why are solids generally rigid? Those particles
fixed position and strong forces. Very good, because particles are locked in fixed position due to strong forces. Which of the following is not a matter? इनमें से कौन सा जो है वो एक मैटर नहीं है, ये बताना. कोल्ड ड्रिंक, ह्यूमिडिफायर, थॉट्स ऑफ माइंड, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए मैटर नहीं है. 59. If we add into water, the ink spreads through the water. This movement is called डिफ्यूजन. आपके पास जब भी एक पार्टिकल दूसरे में मिक्स हो रहा है, इट इज डिफ्यूजन. फिलअप्स करें. चलिए. मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास. बेटा स्पेस और वॉल्यूम सेम ही चीज है. दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. आप स्पेस बोल रहे हो मतलब आप उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हो. The ancient Indian concept of small indivisible particle of matter is known as Parmanu. Very good. Matter is not continuous but is dash in nature. Particulate. Interparticle. मतलब उसके अंदर बहुत सारे particles है जो आपस में force लगा रहे हैं. So it is interparticle in nature. The spaces present between the constituent particles of matter are called particles. इससे पहले वाले में आप क्या बोल रहे थे? Particulate. हाँ ठीक है, पार्टिकुलेट क्यों कर दो उसको. पार्टिकुलेट नेचर बोल रहा है ना, तो पार्टिकुलेट इन नेचर. ठीक है. 65. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. व्हिच फोर्स इज कॉल्ड Particle force of attraction. इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस, या इसे कोहेसिव फोर्स भी कहा जाता है. The energy possessed by particles due to their motion is called Tension. मोशन के कारण. काइनेटिक. बेटा इतनी बार अभी हमने किया. पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. As temperature rises, the movement of particles becomes faster. The spontaneous intermixing of particles of two different types of matter is called the spontaneous intermixing. अपने आप से जो particles की mixing हो रही है, दो अलग टाइप के particles की mixing हो रही है, उसे कहेंगे. फिर क्या बोल रहे हो? Spontaneous का मतलब क्या होता है? Solids have a dash shape and dash volume. Volume. Fixed shape and fixed volume. Next. Liquids have no fixed shape but have dash of fixed volume. Gases have dash fixed shape and dash fixed volume. No fixed shape and no fixed volume. Both liquids and gases can flow, hence they are collectively called fluids. The property of being broken into pieces easily upon hammering is called brittleness. जब कोई चीज हैमर करने से टूट जाती है, it's brittle. Dash is the state of matter which is highly compressible. Gas. The state of matter in which particles only vibrate about their fixed mean position is solid. The melting point of ice is 0 degree Celsius. The melting point of iron is 1538. The boiling point of water is very good. 79. Diffusion takes place fastest in the gaseous state. Which, when a substance is heated, its thermal energy क्या? Increase. The rigidity of solids is due to strong interparticular forces. Sizzling hot food can be smelled from a distance due to high rate of diffusion at high temperature. A sponge can be compressed because it has air trapped in its pores.
Gases exert dash on the walls of the container due to random particular collision. Pressure. The interparticular forces in gases are almost negligible. Negligible. Sugar dissolves faster in dash water than in cold water. Hot water. The arrangement of particles in a solid is highly orderly. Liquids take the dash of the container they are poured in shape. When a liquid turns into solid, the process is called dash or dash. Solidification. अभी क्या होता है MCQ में भी? क्या कहेंगे उसे? Solidification. Next, question number 90. With an increase in interparticular distance, the interparticular force of attraction dash decreases या drops sharp. भाई बताइए और करने हैं मुझे आज के लिए इतने ही. Tip 6. आपकी मर्जी है क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा फिर मम्मी परेशान होंगी. कितने गलत है इतने में?